Hello everyone, welcome to the ninth session of this MCQ series. Welcome all, I'm Dr. Ankit and this is our YouTube channel Human Anatomy by Dr. Ankit. Let's start the first MCQ over here. Question says a 35-year-old male is admitted to the hospital with severe headaches. ठीक है, 35-year male को headache. CT evaluation reveals a tumor in the infratemporal fossa. Physical examination reveals, listen carefully, loss of general sensation from the anterior two-third of the tongue. ठीक है, नर्व पता होनी चाहिए कौन सी है. बट टेस्ट एंड सलाइवेशन आर इंटैक्ट. विच नर्व इज मोस्ट लाइकली अफेक्टेड बाय द ट्यूमर. चलिए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं. क्या क्या फाइंडिंग्स हैं. तो लॉस ऑफ जनरल सेंसेशन फ्रॉम द एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग, नर्व इज लिंगुअल नर्व, बट टेस्ट इज इंटैक्ट एंड सलाइवेशन इज इंटैक्ट, टेस्ट बाय द कॉर्डा टिम्पनी नर्व. सो व्हाट होता ये है कि दैट दिस इज इमेजिन द लिंगुअल नर्व. ठीक है, ये लिंगुअल नर्व है. And then a very thin chorda tympani nerve comes and joins the lingual nerve. तो ये बड़ी पतली सी chorda tympani nerve आती है और इसको join कर जाती है. Okay, so this is the lingual nerve और ये हो गई पतली सी chorda tympani nerve. Now they are saying कि lingual nerve का जो function है ये तो loss हो गया, but chorda tympani का function ठीक ठाक चल रहा है. It means that where is the lesion? तो lesion कहाँ होगा, तो option A देखो, लिंगुअल नर्व प्रॉक्सिमल टू इट्स जंक्शन विद द कॉर्डा टिम्पनी. तो जंक्शन कहाँ है, जंक्शन यहाँ है. तो लिंगुअल नर्व में दे आर सेइंग दैट लिंगुअल नर्व इज डैमेज्ड प्रॉक्सिमल टू द जंक्शन विद कॉर्डा टिम्पनी. ठीक, तो मतलब ये हुआ कि दिस इज द साइट ऑफ लीजन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर 1. और ठीक लग रहा है बिकॉज तभी इन दैट केस ओनली द लिंगुअल नर्व फंक्शन विल बी हैम्पर्ड बट कॉर्डा टिम्पनी का जो फंक्शन है वो चलता रहेगा. राइट, सो ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर. ये हमारा आंसर बनेगा यहाँ पर. दिस विल बी अवर आंसर. फिलहाल लेट्स सी द अदर ऑप्शंस. इफ वी ओनली गो विद ऑप्शन नंबर बी कॉर्डा टिम्पनी, देन दे ऑलरेडी सेइंग कॉर्डा टिम्पनी काम तो सही चल रहा है. इंफीरियर एल्वियोलर ग्लॉसोफेरिंजियल का यहाँ कोई रोल है नहीं. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द लीजन इज ओनली इन लिंगुअल नर्व फंक्शन, नॉट इन द कॉर्डा टिम्पनी. यहाँ पर दिस वी कैन वेरी वेल सी द एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग, इसके सेंसरी फंक्शन ओवर है. So if we zoom it, we can see that in the anterior part of the tongue, lingual nerve is for the general sensation, chorda tympani is for the spatial sensation, मतलब taste. दूसरी इमेज में यहाँ समझें हम लोग that this is the image for the mandibular nerve. Lingual is a branch of mandibular nerve, right? Lingual nerve कहाँ पर है? Here is the lingual nerve. ठीक, ये my lingual nerve. If I put a red arrow over here, so this is the lingual nerve. And for the blue arrow, you can very well see the chorda tympani nerve is coming and joining the lingual nerve. According to the question, where was the lesion? Lesion was at the lingual nerve proximal to the chorda tympani. I hope the point is clear. Second, infection develops in the dural venous sinus lateral to the body of sphenoid bone. So imagine this is the body of sphenoid bone and lateral to it, इसके lateral में there is a dural venous sinus. कौन सा sinus होता है? We all should know, cavernous sinus. So infection occurred over there in the floor of middle cranial fossa. So we know that the question is referring to cavernous sinus. Which neurological observation might you expect the patient to exhibit initially in the affected side? मतलब what are the nerves related in the cavernous sinus और वहाँ पर initially first of all which nerve will be involved? ये question है, interesting question है. If you look at the cavernous sinus, then in इसके lateral wall में we have the third nerve, fourth nerve, V1 and V2. ठीक है, these are the nerves related to the cavernous sinus on the lateral wall. Inside cavernous sinus we have nerve known as abducens nerve. तो अगर इसको अपन यहाँ लिखते हैं, nerves related over here are third nerve, fourth nerve, V1 मतलब ophthalmic, V2 मतलब maxillary. Inside we have the abducens nerve. अगर cavernous sinus thrombosis होती है, the first nerve to be involved will be this abducens nerve will be the first nerve to be involved. What does abducens nerve do? सर काम क्या है? It supplies which muscle? It is going to supply the muscle that is known as lateral rectus. करता है कि lateral rectus, it abducts the eye, तभी तो नाम है इसका abducens nerve. So if the lateral rectus is not functioning, suppose the abducens nerve is involved, lateral rectus will not function, abduction of eye होगा नहीं. If the abduction of eye will not happen, where will the eye move? Eye will move medially. Eye will move medially. So medial deviation होगा. There is going to be medial deviation of the eye. ठीक है ना? So now look at the options. There will be ptosis, dilated pupil, medial strabismus. I hope the point is clear. Answer over here will be the medial strabismus or medial squint. Okay, ptosis is due to the this
डिनर्वेशन ऑफ द LPS, थर्ड नर्व की प्रॉब्लम हो या फिर सिम्पैथिक डिनर्वेशन हो. डायलेटेड प्यूपिल अगेन when there is मतलब the parasympathetic is not working, basically third nerve adding a Westphal nucleus की problem है. But here the question answer is option number C over here. If you look at the image, this is a coronal section of the cavernous sinus. So यहाँ पर few things that we can see are this the sphenoid bone का body आ गई. यहाँ पर we have the cavernous sinus, okay, and here we have the nerves related laterally, which are what? Which are the oculomotor nerve, थर्ड नर्व, फोर्थ नर्व, V1 एंड V2. अंदर कौन सी नर्व है? अंदर जो नर्व है, आई एम हाईलाइटिंग इट सेपरेटली, दैट इज एब्ड्यूसेंस नर्व. Along with one more structure which lies inside is the intercarotid artery. I hope the point is clear. चलिए आगे बढ़ते हैं. Okay, so let's now come to the third question. 70-year-old man is admitted to the hospital with a severe headache. During physical examination, he has difficulty coughing and swallowing. CT scan shows tumor affecting a cranial nerve. So nerve associated with the problem in coughing and swallowing. Again, I will urge to watch a video on the swallowing. Which nerve is most likely affected? Coughing, swallowing, involvement mainly of muscles of larynx, pharynx, mainly supplied by our pharyngeal plexus. Okay, and that pharyngeal plexus, the main motor nerve over here is the vagus nerve. That is the main motor nerve. The sensory nerve in the pharyngeal plexus is mainly the ninth or the glossopharyngeal. So here the problem is with the vagus nerve. So vagus nerve should be our best possible answer, hence it is. Look at this diagram of the vagus nerve. We can very well see over here how the vagus nerve branches. This is the auricular nerve, that is the Haldeman's nerve. Then how the vagus nerve branches into pharyngeal branches, into laryngeal branches and recurrent laryngeal branches, supplying mainly all the muscles of pharynx and larynx. So remember that part. Come to the fourth question. The 55-year-old female is admitted to the hospital with headache, dizziness and vomiting. Radio examination reveals intracranial tumor. Okay, so 55-year-old female and with the intracranial tumor. Upon examination, the patient has look at the sign symptom. देखो, the patient has dryness of nasal cavity. नाक सूख रही है. Think about the nerve. Which nerve goes to nasal mucosa? Has lack of lacrimation and loss of taste from the anterior part of the tongue. बस इसी को जज करना है कि कौन कौन सी नर्व क्या क्या काम कर रही हैं, वहीं पे आंसर है. राइट, सो लेट्स सी ओवर हेयर, जस्ट अ सेकेंड. ओके, बहुत ठंड है नॉर्थ इंडिया में. हैव अ सिप ऑफ टी ऑल्सो. सो ड्राइनेस ऑफ नेजल कैविटी, कौन सी नर्व जा रही है यहाँ पे? हेयर वी आर रेफरिंग टू टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन, जिसकी प्री गैंग्लियोनिक आ रही थी ग्रेटर पेट्रोसल नर्व और पोस्ट गैंग्लियोनिक होती है मैक्सिलरी नर्व. ग्रेटर पेट्रोसल इज ब्रांच ऑफ फेशियल. चलिए, लैक ऑफ लैक्राइमेशन, अगेन इट इज इन्वॉल्विंग द सेम थिंग, टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन, लैक्राइमल ग्लैंड. Loss of taste from the anterior part of tongue. Now, this is a function of which nerve? This is a function of chorda tympani nerve, again a branch of facial. But is that a part of pterygopalatine ganglion? नहीं, यहाँ पर कोई भी रोल pterygopalatine ganglion का नहीं है. Therefore, आंसर क्या होना चाहिए? आंसर यहाँ पे होना चाहिए common thread is the facial nerve. So answer will be the facial nerve. Some of you might think sir pterygopalatine ganglion क्यों नहीं? ये इसलिए नहीं. That can explain. This pterygopalatine ganglion can explain the first sign over here and the second sign, but not the third sign. Loss of taste नहीं समझा सकता, इसलिए आंसर नहीं होगा. तो this is for 1 and 2, facial nerve is for 1, 2 and 3, इसलिए आंसर होगा. यहाँ पर have a look at this image, facial nerve, very very important image, screenshot लेगा. Okay, so nucleus of facial nerve यहाँ से start हुई बात. Then you have the geniculate ganglion, मैं highlight करता चलता हूँ. That is a superficial petrosal nerve. ये मिला जाकर यहाँ पर विडियन नर्व बना है इसने, ठीक है. एंड दिस इज द टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन, ये जो बना है यहाँ पर, दैट इज टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन. एंड देन फ्रॉम हेयर यहाँ से मैक्सिलरी नर्व एंड इट सप्लाइड द लैक्राइमल ग्लैंड, द नेजल म्यूकोसा, नेजल ग्लैंड, पैलेटल ग्लैंड, वो सारे के सारे. बट देन ऑल्सो यू सी ओवर हेयर द ब्रांच कॉर्डा टिम्पनी, ये एक और टिम्पनी ब्रांच. इट गोज एंड इट टेक्स टेस्ट फ्रॉम द एंटीरियर टूथ ऑफ द टंग बाय ज्वाइनिंग विद द लिंगुअल नर्व, जो हमने क्वेश्चन किया था अभी. देखो प्रॉब्लम सब जगह है, तो प्रॉब्लम सिर्फ गैंग्लियन में नहीं होगी. देयरफॉर प्रॉब्लम विल नॉट बी लिमिटेड टू द गैंग्लियन, प्रॉब्लम विल बी देयर इन द फेशियल नर्व, तभी आंसर फेशियल नर्व था. चलिए फिफ्थ क्वेश्चन. 23-year-old lady comes to the physician because
of 2-month history of episodic headache associated with the dizziness, nausea, vomiting. OTC, over the counter drugs जो होती हैं, medication have failed to reduce the symptom. Symptom क्या है भाई? headache है, dizziness है. MRI shows isolated dilation of the left lateral ventricle. Dilatation is most likely caused by blockade of which of the following structure? So दो lateral ventricle होते हैं, तभी उनका नाम lateral है. One is the right lateral ventricle, one is the left lateral ventricle. And both of them then join into the third ventricle. Third ventricle जाता है fourth ventricle में. बीच में क्या पड़ता है? बीच में you have the aqueduct of Sylvius. ये कहानी है. यहाँ पर they are saying isolated dilation of left lateral ventricle. तो dilation किसका हुआ है? सिर्फ और सिर्फ left lateral ventricle का. What does it mean? It means कि यहाँ पर जो ओपनिंग है, यहाँ पर कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है. ये है साइट ऑब्स्ट्रक्शन की. एंड दीज आर द फोरामेन ऑफ मॉनरो, द इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ मॉनरो. तो सही सीधा आंसर है. आंसर बन गया हमारा इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, फोरामेन ऑफ मॉनरो, लेफ्ट साइड का. डायग्राम देखिए यहाँ पर. दिस इज शोइंग अस द सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स, और यहीं पर हमारे ये वेंट्रिकल्स हैं, अंदर वेंट्रिकल दिखाए गए. दिस इज द लेटरल वेंट्रिकल बोथ साइड. ये अगर मैं जूम करूँ देन दिस साइड विल बी द मॉनरो. ये इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन है मॉनरो का. Then it is continuing into third ventricle which goes into fourth ventricle. और बीच में क्या पड़ा? बीच में you have this thin aqueduct of Sylvius, मिड ब्रेन में जो होती है, वो ध्यान देना है. बाकी इससे और समझ में आ जाएगा लेबल्ड पार्ट. दिस इज द लेबल्ड पार्ट. स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ते हो इसको. नेक्स्ट कम टू द सिक्स्थ क्वेश्चन. 75-year-old female fell in the hospital and landed on her hip. The given AP X-ray reveals fragmentation of her proximal femur. तो यहाँ पे क्या हुआ? फ्रेगमेंटेशन हो गया प्रॉक्सिमल फीमर का. विच मसल इज मोस्ट लाइकली डिटैच्ड. तो एक्सरे देखो, समझो फीमर में कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है. सो व्हाट इज द साइट? द साइट वी कैन इजिली अंडरस्टैंड, यहाँ पर प्रॉब्लम है, राइट. सो इट इज विच पार्ट ऑफ द फीमर? इट इज अ ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर. वो क्रश हो गया सबसे. इट इज द लेटरल मोस्ट प्रोजेक्टेड पार्ट ऑफ द फीमर. सो यहाँ पर कौन सी मसल अटैच होती है? देखते हैं अभी ऑप्शन क्या क्या है. या तो यू नो थियोरेटिकली that mainly the gluteus medius and minimus attach over here, तो आंसर आपके सामने सीधा हो गया. इफ नॉट देन और रूल आउट करने की कोशिश करते हैं, बट वी नो आंसर ये हमारा. जीमैक्स कहाँ पे अटैच होता है? इट अटैचेस ऑन द ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी प्लस इट अटैचेस ऑन द इलियोटिबल ट्रैक्ट. इलियोसोस जाता है अपन लेसर ट्रोकेंटर में ऑन द मीडियल एस्पेक्ट. और बाइसेप्स फीमोरिस के तो दो हेड हैं, वन कमिंग फ्रॉम द इस्चियम एंड वन कमिंग फ्रॉम द फीमर. देन इट इज गोइंग डाउन इनटू द फिबुला. फिबुला में जा रहा है. आंसर बना हमारा ग्लूटियस मीडियस. लुक ओवर हेयर, दिस आर द लेटरल व्यूज. पोस्टीरियर ये, एंटीरियर ये है. लेटरल व्यू है, दिस इज द ग्रेटर ट्रोकेंटर जीटी. मिनिमस भी यहीं अटैच हो रहा है और मीडियस भी यहीं अटैच हो रहा है ऑन द ग्रेटर ट्रोकेंटर. ठीक है. कमिंग टू द सेवंथ वन. 65-year-old lady had pelvic surgery during which some cancerous lymph nodes were removed from the lateral wall of her pelvis. तो ऑपरेशन हुआ है इसको लेटरल वॉल ऑफ पेल्विस में, जहाँ कुछ लिम्फ नोड निकाले गए. ड्यूरिंग अ पोस्ट ऑप she says she has been having painful muscle spasm in her thigh. पोस्ट ऑप में उसने कहा कि इस ऑपरेशन तो ठीक हो गया, लेकिन पैर में ना, थाई में मसल स्पाजम हो रहा है. पैर में मसल स्पाजम हो रहा है पेल्विक सर्जरी के बाद. विच फॉलोइंग मसल इज मोस्ट लाइकली इन्वॉल्व्ड? नाउ इफ यू लुक एट अवर वीडियो, एक वीडियो और आई लॉन्च्ड रिसेंटली अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. एक तो वीडियो था टू जस्ट नेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, टॉप 10 टॉपिक्स. एंड द अनदर वीडियो, उसकी मैंने थोड़ा सा इन डेप्थ हल्का सा ब्रीफली दिया है, ज़रूर देखना उसको. इन दैट नर्व इंजरीज वी हैव एक्सप्लेन्ड वर्टिब्रल लेवल्स, वी हैव एक्सप्लेन्ड सुपरफिशियल आर्टरीज पैल्पेशन कैसे करनी है, डर्मेटोम्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया सबके बारे में है, राइट. सो इन दैट वी हैव डिस्कस इन लो लिम्ब नर्व इंजरीज दैट द नर्व ऑब्टरेटर नर्व व्हेन इट इज डैमेज इन केस ऑफ पेल्विक सर्जरीज. क्यों? बिकॉज दिस नर्व रन्स इन द लेटरल वॉल ऑफ पेल्विस. अब देखो ऑपरेशन कहाँ हुआ है? लेटरल वॉल ऑफ पेल्विस में ऑपरेटर नर्व डैमेज हो सकती है. एंड देन ऑपरेटर नर्व सप्लाइज डैश कंपार्टमेंट ऑफ थाई. बताइए, बताओ भाई. इट सप्लाइज द मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई. ठीक है. तो ऑपरेटर नर्व इरिटेट हो सकती है इन द ऑपरेशन ऑफ लेटरल वॉल ऑफ पेल्विस, एंड देन मीडियल थाई की मसल्स ऑब्वियसली स्पाजम में जा सकती हैं. व्हाट आर द मसल्स इन मीडियल थाई? ऑल द एडक्टर्स. बट एडक्टर तो ऑप्शन ही नहीं है. देन निमोनिक वाज गोआ, GO-AAA. GO-AAA में तो 3 एडक्टर आ गए. G और O से क्या है? वन इज द ग्रेसिलिस, O से ऑब्टरेटर एक्सटर्नस. कोई ना कोई तो ऑप्शन होगा. ये रहा ग्रेसिलिस, ये रहा ग्रेसिलिस. इमेज में देखो, समझो. दिस द इमेज ओवर हेयर. हेयर वी कैन वेरी वेल रिकॉग्नाइज द पेल्विस एंड ऑल्सो डू रिकॉग्नाइज द लोकेशन ऑफ ऑब्टरेटर. जूम कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर
If I put some more blue color arrows, this is obturator nerve going to the lateral wall of true pelvis, passing through the obturator canal which is inside the obturator foramen, और फिर निकल के it is coming right over here in the medial thigh, supplying which muscles? Supplying ये सारी muscles, obturator externus, adductor brevis, adductor longus, gracilis, आपका adductor magnus, ठीक है ना, याद रखिए सब चीज़ें। Coming to the 8th question again of the lower limb, घुटने का एग्जामिनेशन हो रहा है। A soccer player injures the left knee when he twists the flex knee while trying to avoid another player. Image based question समझ लो। While performing a knee examination, the physician pulls the flex knee towards her body. Physician ने flex knee को अपनी body की तरफ pull किया है। They are pulling the flexed knee towards their body. This clinical test is a check of integrity. So कौन सा टेस्ट है? Basically anterior draw test है। This is the anterior draw test, like the Lachman test. टेस्टिंग और टेस्टिंग ACL एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट के ऑप्शन में है, होना चाहिए, ये रहा ऑप्शन नंबर सी, है ना। सो इफ दे आर पुलिंग टुवर्ड्स देम ACL एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट, दे आर पुशिंग द लेग अवे पोस्टीरियर ड्रॉ टेस्ट, PCL पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, सिंपल एज दैट। इमेज है, दीज आर द नी लिगामेंट्स, कुछ इमेजेस, यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। एंड द क्वेश्चन, आफ्टर स्ट्रेटनिंग द नी द पैटेलर डिसलोकेशन इज रिड्यूस्ड, अच्छी बात है, पैटेलर डिसलोकेट हो गया था, स्ट्रेटन कर दिया। टू प्रिवेंट फ्यूचर डिसलोकेशन व्हाट मसल शुड बी टारगेटेड। अब ध्यान दीजिए कि पटेला नॉर्मली डिसलोकेट होता है टुवर्ड्स द लेटरल साइड, है ना, पटेला नॉर्मली डिसलोकेट होता है टुवर्ड्स द लेटरल साइड, टुवर्ड्स द लेटरल साइड। बार बार डिसलोकेट ना हो, वी शुड स्ट्रेंथन द मसल विच इज अटैचिंग ऑन द पटेला फ्रॉम द मीडियल साइड। कौन सी मसल है ऑन द मीडियल साइड विच इज गोज टू द पटेला? वास्टस मीडियलिस। ऑप्शन होना चाहिए कि ये रहा। सवाल आता है सर वाई डज पटेला डेविएट टू लेटरल, पटेला लेटरल जा ही क्यों रही है? बिकॉज द होल अलाइनमेंट ऑफ द फीमर, होल अलाइनमेंट जो होता है बेटा फीमर का, वो सीधे ऊपर नहीं होता है, सुपीरियर लेटरली होता है। तभी क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस का जो पुल है दैट इज सुपीरियर लेटरली, तभी पटेला में ऑल द मसल्स ऑफ द क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस आर अटैच्ड, तो पटेला इज प्रोन टू डिसलोकेट लेटरली। इसीलिए यहाँ पर देखो द पुल, यू कैन सी फ्रॉम द इमेज, पुल इज गोइंग सुपीरियर लेटरली, तभी वी हैव टू स्ट्रेंथन विच मसल? वास्टस मीडियलिस, ये वाली मसल अंदर की तरफ, है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। 45-year-old is treated at the hospital after he fell from his bicycle, है ना। रेडियो एग्जामिनेशन रिवील्स फ्रैक्चर ऑफ बोथ टिबिया फिबुला। ऑन एग्जामिनेशन द पेशेंट हैज अ फुट ड्रॉप, देखो क्या क्या चीज़ें हैं, फुट ड्रॉप मिला है, कौन सी कंपार्टमेंट ऑफ लेग गया? एंटीरियर लेग कंपार्टमेंट गया, तभी फुट ड्रॉप हो रहा है। बट नॉर्मल इवर्जन, इवर्जन इज कॉज्ड बाय लेटरल कंपार्टमेंट, तो एंटीरियर कंपार्टमेंट तो गया, बट लेटरल कंपार्टमेंट नॉर्मल है, एंटीरियर माइनस कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व्स, बता दो भाई, सिंपल है। एंटीरियर लेग की कौन सी नर्व है? डीप पेरोनियल या डीप फिबुलर, कुछ भी कह लो। लेटरल कौन सी नर्व है? सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व, कौन सी गई? डीप पेरोनियल, ऑप्शन है, बिल्कुल होना चाहिए रहा। अगर क्वेश्चन लिखते एंड लॉस ऑफ इवर्जन, एंड मतलब फुट ड्रॉप के साथ देयर इज लॉस ऑफ इवर्जन, तो हमें क्या सोचना था? तो हमें सोचना था या डीप पेरोनियल भी गई और सुपरफिशियल पेरोनियल भी गई। इस केस में आंसर क्या होता? कॉमन पेरोनियल नर्व, अगर लॉस ऑफ इवर्जन भी होता। ठीक, यहाँ देख लीजिए इमेज में, दिस इज द कॉमन फिबुलर नर्व, ठीक है ना, और देन इट डिवाइड्स इनटू डीप फिबुलर जो एंटीरियर लेग, सुपरफिशियल फिबुलर लेटरल लेग, एंड टिबियल इसकी ब्रांच शियाटिक की, इट सप्लाइज द पोस्टीरियर लेग, सिंपल एज दैट। ठीक है, सो गाइस दिस वाज द सेशन, आई होप यू आर एंजॉयिंग। विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। रिवाइज करते रहो, कोई दिक्कत हो कुछ हो कमेंट बॉक्स में पूछो, और कनेक्टेड रहो, हिम्मत रखो, हार्डवर्क का टाइम है, करते रहो फटाफट। मिलते हैं जल्दी।